तो बच्चों कैसे हो आप लोग। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। टुडेस टॉपिक इज एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है ना। फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ up to third month, the process of blood production erythropoiesis is intravascular. This intravascular production occurs in yolk sac. From third month to fifth month, the process takes place in liver and spleen. From fifth month to rest of the life, the process takes place in the bone marrow. Now this process erythropoiesis that is taking place in bone marrow, liver and spleen is the extravascular. ठीक है ना। ये सब except yolk sac, all other process of erythropoiesis are extravascular. Now distal ends of long bones contains inactive yellow bone marrow. Inactive yellow bone marrow. Now when there is extreme need, अगर कोई हेमरेज हो गया, एक्सट्रीम हेमरेज हो गया, बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होगा ना, तब ये जो इनएक्टिव येलो बोन मैरो है ना, ये एक्टिव रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिव रेड बोन मैरो। Now this active red bone marrow is mostly present in the proximal ends of long bones and also flat bones. ठीक है ना। proximal end of long bones, flat bones. ठीक है। flat bones. Now what are the principal steps of erythropoiesis? All it begins from pluripotent stem cell. ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल सुपर हीरो की तरह है। मतलब ये कुछ भी ब्लड सेल प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है ना। मतलब एक सुपर हीरो जैसा होता है। तो फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल देयर आर टू डिविजन्स. वन इज committed myeloid series and committed lymphoid series. Now this committed myeloid series gives rise to CFU-GEMM. This is a multipotent cell. Basically it helps in the production of granulocyte, erythrocyte, megakaryocyte and monocyte. क्या granulocyte, erythrocyte, megakaryocyte and monocyte. ठीक है ना। Now this committed cells, from this they form the blast forming unit from erythrocyte. ठीक है ना। तो this blast forming unit of erythrocyte, colony forming unit of erythrocyte is produced. Colony forming unit of erythrocyte. Now this point is important because erythropoietin works on this stage. Erythropoietin has effects on CFU. क्या होता है ना, जो CFU है ना, ई में ना, ये जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स एरिथ्रोपोइटिन. ठीक है ना. सो नाउ
let's come to erythropoietin. Erythropoietin is principally produced by liver and kidney. Now 85% of it is produced from the kidney, 85% from kidney and 15% from liver, 15% from liver, ठीक है ना. Now in case of renal disease, what can occur is there will be deficient erythropoietin production, so anemia can occur in case of renal diseases, ठीक है ना. Anemia occurs in renal diseases due to deficient production of erythropoietin. Now CFEOE, from CFEOE the next progenitor cell, ठीक है ना, that is produced is pronormoblast, ठीक है ना, pronormoblast. Pronormoblast. Now this pronormoblast has some features. यहाँ पे क्या होता है, हम एक स्टेज से फर्दर जो स्टेजेस है, फर्दर जो मैच्योर RBC है उसके तरफ जब जाते हैं ना, तो जो साइज है बोथ ऑफ सेल्यूलर, बोथ सेल साइज एंड बोथ न्यूक्लियर साइज, ये सब डिक्रीज होता जाता है. सो एज वी प्रोसीड फर्दर from one stage to another stage towards maturation, the size of cell and the size of nucleus are continuous decreasing, ठीक है ना. आपको पता ही है कि मैच्योर RBCs में जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है. सो दिस इज द रीज़न यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाई द शेप एंड द साइज इज कंटिन्यूसली चेंजिंग टूवर्ड्स ए डिमिनिश्ड साइज. मतलब एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये जो न्यूक्लियस है ना ये कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है ना. सो this is the reason. Now this pronormoblast has some features. Its size is 15 to 20 micrometer, 15 to 20 micrometer in diameter, and the size of nucleus is 12 micrometer. Nucleus size is 12 micrometer. Hemoglobin is absent in this stage, ठीक है ना. Hemoglobin is absent in this stage, and nucleus and cytoplasm are strongly basophilic in character. Strongly basophilic. आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सेलुलर कंपोनेंट्स बेसोफिलिक होता है, कौन कौन सा सेलुलर कंपोनेंट्स इओसिनोफिलिक होता है, ठीक है ना. ये आपको पता होना चाहिए. मोस्टली जो RNA बेस्ड स्ट्रक्चर्स होता है, न्यूक्लिक एसिड बेस्ड स्ट्रक्चर्स होता है, ये सब बेसोफिलिक होता है. एंड जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो इओसिनोफिलिक होता है, ठीक है ना. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट और बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है ना. यहाँ पे भी जो है स्ट्रांगली बेसोफिलिक है, बट हीमोग्लोबिन बिगिंस टू अपीयर इन द लेट फेजेस ऑफ दिस स्टेज, ठीक है ना. इन बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, what happens is hemoglobin starts producing. Starts to being produced in the later stage. Early normoblast. Now nucleus is large in size but nucleoli are absent, ठीक है ना. इस स्टेज में न्यूक्लियोली एब्सेंट होता है. देखो न्यूक्लियस का जो एक एक करके कंपोनेंट्स है वो गायब होते जा रहा है. मतलब जो न्यूक्लियस है ये अब डिसअपियर होने की वे में है, ठीक है ना. न्यूक्लियोली is absent but mitosis is present. Now the next stage is intermediate normoblast. Now it is also called the polychromatophilic. Intermediate normoblast. हमने पहले ही बोला है जो हीमोग्लोबिन होता है वो इओसिनोफिलिक होता है. इसको हम पॉलीक्रोमाटोफिलिक क्यों बोलते हैं? पॉलीक्रोमाटोफिलिक क्योंकि इट इज़ बोथ बेसोफिलिक एंड इओसिनोफिलिक. बेसोफिलिक कंपोनेंट कौन सा होता है? जो न्यूक्लियस होता है उसका, मतलब न्यूक्लियर कंपोनेंट्स होता है. जो हीमोग्लोबिन होता है वो इओसिनोफिलिक होता है. तो इसमें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हैज़ इंक्रीज्ड. अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन
has increased to proper amount so that it can exert its eosinophilic property to the cell, ठीक है ना. So it becomes polychromatophilic. Now जो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस स्टॉप्स इन दिस स्टेज, ठीक है ना. माइटोसिस पहले स्टेज में ये पहले क्या न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, ठीक है ना. फिर माइटोसिस अभी गायब हो रहा है. ये सेम टू सेम पैटर्न ना आपको न्यूट्रोफिल प्रोडक्शन में भी देखने को मिलेगा. न्यूट्रोफिल में भी अगर हम बोलते हैं कि आप उसका जो माइलोब्लास्ट है, फिर प्रोमाइलोसाइट है, माइलोसाइट है, ठीक है ना. तो माइलोसाइटिक स्टेज में जो थर्ड स्टेज होता है ना, ठीक है ना, उसमें आपका जो न्यूक्लियोलस होता है वो गायब हो जाता है. और इसके ही बाद का जो स्टेज है द कंसिक्यूटिव स्टेज, उसमें आपका जो माइटोसिस होता है वो स्टॉप हो जाता है. तो ये जो एरिथ्रोपोइसिस, ये जो ब्लड सेल प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें अगर जो स्टेज में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, उसके मतलब न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो जाता है, उसके बाद वाले स्टेज जो है उसमें आपका जो माइटोसिस है वो स्टॉप हो जाता है. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता चलेगा, ठीक है ना. तो माइटोसिस is normally mitosis was previously present. Mitosis is absent in the late phase of intermediate normoblast or polychromatophilic normoblast. The next stage is late normoblast. Late normoblast, ठीक है ना. Late normoblast, which is also called orthochromatic normoblast. Orthochromatic. Now in this stage द क्रोमाटिन जो है ना, जो क्रोमाटिन मटेरियल हो जाता है ना, उसका एक कार्टविल टाइप का अपीयरेंस, मतलब चक्का की तरह कार्टविल अपीयरेंस. क्रोमाटिन कार्टविल लाइक अपीयरेंस. क्रोमाटिन बिकम्स कार्टविल लाइक अपीयरेंस एंड जो स्टेनिंग होता है ना, इट एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस. द स्टेनिंग increases for which the pycnotic appearance occurs, ठीक है ना. pycnotic appearance of nucleus. Pycnotic appearance of nucleus. साइटोप्लाज्म इज जो है साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ बिट ईओसिनोफिलिक इन नेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन. यहाँ पे ना ये स्टेजेस में हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता जा रहा है. सो साइटोप्लाज्म इज ईओसिनोफिलिक इन कैरेक्टर. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज रेटिकुलोसाइट. इट कंटेन्स बैंड ऑफ आरएनए. पहले मैंने बोला था जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है वो आपका थोड़ा बेसोफिलिक कैरेक्टर होता है. तो यहाँ पे इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ आरएनए भी है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन भी है. सो ये क्या होगा, ये पॉलीक्रोमाटोफिल होगा, ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमाटोफिल. वो था पॉलीक्रोमाटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, ये है पॉलीक्रोमाटोफिल. दोनों में डिफरेंस है. एक होता है आपका पॉलीक्रोमाटोफिल और एक होता है पॉलीक्रोमाटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट. सो ये इसको पॉलीक्रोमाटोफिल बोलते हैं, नॉट पॉलीक्रोमाटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है ना. बैंड ऑफ आरएनए. नाउ रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मली 2 to 6% होता है, ठीक है ना. जो न्यूबॉर्न चिल्ड्रन होता है, जो बच्चा अभी अभी जन्मा है, उसका 2 to 6% पेरिफेरल ब्लड में आपका देखने को मिलेगा आपको रेटिकुलोसाइट, ठीक है ना. 2 to 6% रेटिकुलोसाइट. नाउ इन कंडीशन सपोज किसी का सीवियर हेमोरेज हो जाता है, सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है, तो ब्लड का ज़रूरत होगा. तो मैच्योर होने से पहले आरबीसी को रेटिकुलोसाइट स्टेज में जाना पड़ता है. तो जब ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, देयर इज इंक्रीज ब्लड सेल प्रोडक्शन. रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना. रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंक्रीज, रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन, ठीक है ना. इंक्रीज अमाउंट ऑफ पॉलीक्रोमाटोफिल. तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट क्राइसिस. रेटिकुलोसाइट क्राइसिस व्हेन द अमाउंट ऑफ रेटिकुलोसाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल 2 to 6% टू 25 to 30% ऑफ द रेटिकुलोसाइट, ठीक है ना. इट इंक्रीजेज अप टू 25 to 30% ऑफ द रेटिकुलोसाइट्स. इसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट क्राइसिस एंड इट ऑकर्स इन द कंडीशंस ऑफ सीवियर ब्लड लॉस, एनीमिया, एक्सट्रीम हेमरेज, ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट क्राइसिस.
erythropoiesis. Now the factors that influence erythropoiesis, the most important factors is erythropoietin. मैंने पहले बोल दिया था जो erythropoiesis है ना उसका, जो renal disease में. And the other important factors are vitamins like vitamin B12, folic acid, ठीक है ना. Important factors, vitamin B12, folic acid, ठीक है ना. फिर आपका जो स्टेम सेल फैक्टर है, स्टेम सेल फैक्टर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, स्टेम सेल फैक्टर. इंटरल्यूकिन्स ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट. इंटरल्यूकिन 1 and 3, ठीक है ना. इंटरल्यूकिन 1 and 3. एंड और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, साइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. और एक जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है आपका लोकल जो मतलब न्यूट्रिशन होता है ना, जो न्यूट्रिशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है ना. जो आप लोकल एनवायरनमेंट में मतलब रहते हो उसके उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्लिनिकल कंडीशंस लाइक पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है ना. पर्नीशियस एनीमिया, in pernicious anemia the intrinsic factor that is produced is deficient in nature, ठीक है ना. तो ऑटो एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स. तो जो पैराइटल सेल्स ऑफ आवर स्टोमक है, पैराइटल सेल्स का और एक नाम होता है आपका ऑक्सिंटिक सेल्स. पैराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर. दिस इंट्रिंसिक फैक्टर normally binds with vitamin B12 and transport it to the terminal path of ileum. Where there are receptors for this complex, intrinsic factor vitamin B12 complex. So in pernicious anemia, autoantibodies prevent the binding of intrinsic factor vitamin B12, or they destroy the intrinsic factor, or they interfere with the binding of intrinsic factor vitamin B12 complex with the receptors in the terminal part of ileum, ठीक है ना. 3 कंडीशन हो सकता है. ऑटो एंटीबॉडीज destroy intrinsic factor, शॉर्ट में लिख रहा हूँ. prevents binding of intrinsic factor and vitamin B12, or prevents binding of intrinsic factor vitamin B12 complex with the receptor. या 3 कंडीशन हो सकता है. Now in pernicious anemia, normally the mean corpuscular volume, ये आपको बाद में पता चलेगा, मैं बाद में पढ़ाऊँगा. मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज करता है, पर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रहता है, ठीक है ना. मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ऑल्सो increases, but mean corpuscular hemoglobin concentration remains normal, ठीक है ना. और ये जो पर्नीशियस एनीमिया होता है ना, इसमें आपका न्यूरोनल साइंस भी, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स भी हो सकता है, क्योंकि जो विटामिन B12 है ना, इफ़ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 देयर विल बी डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ मिथियोनिन, ठीक है ना. ये मैकेनिज्म मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना. अभी के लिए ये जान कर रखो कि जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाता है, जब देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 देयर विल बी डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ मिथियोनिन. So there will be also deficient production of S-adenosyl methionine, which is important in formation of myelin sheath, ठीक है ना. So there will be neuronal degeneration and also there will be accumulation of some abnormal fatty acid. Methionine नहीं है और there will be increased amount of abnormal fatty acid.
So there is myelin sheath degeneration. ठीक है ना, there will be myelin sheath degeneration. एंड न्यूरोपैथी, है ना. आज के लिए इतने तक. थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स. ओके.